السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچانے والا ہوں کہ تہجد کی نماز کا طریقہ اور تہجد کی نماز کتنی رکعتیں ہیں اور تہجد کی نماز کی کیا فضیلت ہے اور تہجد کے نماز کے بعد کا ایک وظیفہ۔ یہ 4 چیزیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ جو ہیں اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، غور سے سنیں اور سمجھ میں آئے تو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جی ہاں، تو ناظرین کرام، گزارش بھی کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں اور ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے تہجد کی نماز اٹھ کر خاص اللہ کے لیے پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی سے اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ آپ اگر تہجد کی نماز کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین جو ہے اس نماز کی برکت سے آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ تو ناظرین، بہت بڑی فضیلت ہے تہجد کی نماز کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھیں، کیونکہ یہ تہجد کی نماز جو ہے اس وقت اگر کوئی بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اس وقت اگر ہم اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یعنی کہ دعا اس وقت جو ہے قبول ہوتی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ تہجد کی نماز کس وقت میں ہمیں پڑھنا ہے۔ تو تہجد کی نماز کا وقت فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں اگر تہجد کی نماز پڑھا جائے تو سب سے بہتر ہے۔ رات کے آخری حصے میں، یعنی فجر کی اذان سے کچھ دیر، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اگر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی جائے تو فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ بہت بہتر ہے۔ اور ویسے اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے، آپ کی آنکھ کھل گئی، 1 گھنٹے کے اندر آنکھ کھل گئی، تو پھر آپ چاہیں تو تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ سو جائیں۔ آپ کی تہجد کی نماز، یعنی جو نیت آپ نے کی تھی تہجد کی، تو وہ نماز تہجد ہی کہلائے گی۔ جی ہاں ناظرین کرام، پھر آپ فجر کے وقت ضرور اٹھیں، کیونکہ فجر کی نماز یہ فرض ہے، اس کا ادا کرنا ہم پر آپ پر بہت ضروری ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ تہجد کی نماز جو ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے گھروں میں رب تبارک و تعالی خوب اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، خوب اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو بھی دعا اس وقت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، بہت بہترین فضیلت ہے تہجد کی، اور میں نے سوچا کہ اب آپ کو بتا دوں کہ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 12 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اور کبھی کبھی 8 رکعت بھی پڑھ لیتے تھے، کبھی 6 بھی پڑھ لیتے تھے، یعنی جب لیٹ اٹھتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی 6 بھی پڑھے ہیں، کبھی 8 بھی پڑھے ہیں، لیکن اکثریت 12 رکعت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پوری 12 رکعت نماز مکمل پڑھیں، وقت کم ہے تو کم سے کم 2 رکعت تو آپ ضرور ادا کریں۔ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے کہ جتنی بھی نفل نماز ہے، یعنی کہ ظہر میں نفل بھی ہے، عصر میں نہیں ہے، مغرب میں نفل نماز ہے، عشاء میں نفل نماز ہے، فجر میں نہیں ہے، اور بعد باقی جیسے صلاۃ اللیل ہے، صلاۃ الحاجات ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نفل نماز ہے۔ تو جتنی بھی نفل نماز ہے، ہر نفل نماز سے بہتر تہجد کی نماز ہے، اور ہر فرض کے بعد تہجد کی نماز بہتر ہے۔ یہ بھی سمجھ لیجیے، ہر فرض کے بعد تہجد کی نماز۔
अब फ़र्ज़ में, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप सवाल हो सकता है आपके जहन में आता होगा, तो आप सवाल करेंगे कि मौलाना साहब फिर तो वित्र वाजिब, तो ये वित्र वाजिब जो हमेशा में पढ़ते हैं ना, ये भी मतलब वाजिब है, ये फ़र्ज़ के बराबर शुमार होता है, ये समझ लीजिए। तो ये वित्र वाजिब के बाद ये तहज्जुद की नमाज है, ये भी समझ लीजिए, मैं आपको समझाने के तौर पर बता दिया हूँ। अब आइए मैं आपको एक वजीफ़ा जो तहज्जुद की नमाज के बाद आपको करना है, और ये बेहतरीन वजीफ़ा है उन लोगों के लिए कि जिसकी शादी का रिश्ता नहीं आता है, या अगर रिश्ता वगैरह आता है तो टूट जाता है, कहीं से अच्छा रिश्ता नहीं आता है, या लड़की की तरफ से कुछ रुकावटें हो जाती है, कभी लड़के की तरफ से कुछ रुकावटें हो जाती है, कभी उनके माँ बाप नाराज़ रहते हैं तो कभी इनके माँ बाप नाराज़ रहते हैं, कभी इनके रिश्तेदार नाराज़ रहते हैं, ये अलग अलग बातें होती रहती हैं। तो आज जो मैं आप तक ये वजीफ़ा पहुंचा रहा हूं, ये बहुत बेहतरीन वजीफ़ा मोहब्बत के लिए। जी हाँ मेरे भाइयों, अच्छा से अच्छा रिश्ता इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आप यकीन के साथ इस वजीफ़े को करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। या आपकी मोहब्बत के दीवाने हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि मेरी शादी वहीं हो, मेरा निकाह वहीं हो, तो आप इस वजीफ़े को ज़रूर करें, चाहे लड़का चाहे चाहे लड़की चाहे। ये पर्सनल मोहब्बत का वजीफ़ा आज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और ये करना कब है? ये तहज्जुद के वक्त ही आपको इस अमल को, इस वजीफ़े को करना है। तो याद रखिए, तहज्जुद की नमाज के बाद जो ये वजीफ़ा करेंगे, तो वजीफ़ा करने से पहले मेरे भाई मेरी बहनों 5 वक्त की नमाज जो अल्लाह ने हम पर आप पर फ़र्ज़ किया है, इसका अदा करना भी बहुत ज़रूरी है। आप 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप चाहेंगे कि हम वजीफ़ा ही कर लें, तो हो सकता है कि उसमें आपका काम ना बने, बाद में आप शिकवा शिकायत करेंगे कि यूट्यूब पर लोग जो है हज़रत लोग बैठते हैं, वीडियो बना के जो है डाल देते हैं, काम तो होता नहीं है। तो मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूं कि आप 5 वक्त की नमाज पहले अदा करें, और एक दिन नहीं, हमेशा आप 5 वक्त की नमाज, जब तक आपके शरीर में सांस है तब तक आप 5 वक्त की नमाज अदा करते रहें। उसके बाद जो है आप चाहें तो इस वजीफे को करें और वजीफा करें इंशाअल्लाह। यकीन के साथ मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी, आपकी मोहब्बत में ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो आइए वजीफ़ा की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। वजीफ़ा क्या करना है कि आप तहज्जुद की नमाज के टाइम उठें, तहज्जुद की नमाज अदा करें। नमाज अदा करने के बाद जहां पर आपने नमाज अदा किया है उसी जगह पर बैठे बैठे आपको क्या पढ़ना है? आपको सबसे पहले 7 मरतबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको कुरान पाक की एक आयत मैं आपको बता रहा हूं। वो आयत क्या है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी। बस इतना ही आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी। इस तरीके से आपको 313 मरतबा पढ़ लेना है। ठीक है, 313 मरतबा आपको पढ़ लेना है। फिर आखिर में 7 मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का तोहफा भेजना है, यानी कि 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। जो भी दरूद पाक आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं, और जो नमाज में जो दरूद इब्राहिम पढ़ा जाता है अगर वो आप चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कितनी मरतबा पढ़ना है? 313 मरतबा। व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी। दिल में तसव्वुर करके, दिल में उस मोहब्बत का तसव्वुर करके आपको ये वजीफा करना है। और जब 313 मरतबा पढ़ के 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के जो है आपको फिर क्या करना है? अपने ही दिल में तसव्वुर करके, अगर आपकी मोहब्बत अगर दूर है, यानी लड़का चाह रहा है कि लड़की से मोहब्बत हो जाए, अच्छी तरीके से हमारा निकाह हो जाए, और वो लड़की का घर दूर है, आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो अपने दिल में तसव्वुर करके उस लड़की और उस लड़की के माँ बाप का अपने दिल में तसव्वुर करके उसकी तरफ फूंक मार दें, यानी दम करें। और अगर आपके करीब है वो, यानी लड़की का घर करीब है या लड़के का घर करीब है, आप खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, तो फिर आपको क्या करना है? किसी मीठी चीज़ पर जो है आपको दम कर लेना है, पानी पर दम कर लेना है। फिर आप उसको जो है खिला दें या पिला दें। 3 दिन आप रेगुलर, पहले तो इसको आप करें, ये समझ लीजिए आपको 3 दिन रेगुलर करना है।
3 दिन 313 मरतबा आपको पढ़ लेना है। मिठाई पर अगर आप दम करते हैं तो 3 दिन तक इस पर दम करके फिर बाद में आपको खिलाना है, या पानी पर दम करते हैं तो 3 दिन तक दम करके फिर उसके बाद जो है उसको पिलाना है। या अगर वो नहीं हो सकता है, आपसे दूर है, आप जा नहीं सकते हैं, तो अपने दिल में उसका तसव्वुर करके उसके ऊपर आपको दम कर देना है। तो नाजरीन, सही मानों में नीयत अगर आपकी अच्छी होगी, आप अगर सही मानों में आप निकाह करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं मोहब्बत करके छोड़ देते हैं, शादी वगैरह करते नहीं हैं, तो फिर ये सब सही नहीं है, ये सब गुनाह का काम होता है। अगर आपके दिल में है कि हम उस लड़की से हम निकाह करेंगे, तो फिर आप अगर इस वजीफे को करते हैं और निकाह करना चाहते हैं और आपका काम नहीं बन रहा है, तो आप ये वजीफे को कीजिए 3 दिन। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी वजीफे में अगर नीयत अच्छी होगी, दिल के इरादे से यकीन कामिल के साथ अगर आपने किया है, तो इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। लड़की राजी नहीं थी, वो लड़की भी राजी हो जाएगी, उसके माँ बाप अगर राजी नहीं थे तो उसके माँ बाप भी राजी हो जाएंगे, और आपका निकाह का पैगाम आपके घर तक जरूर चल के आएगा। जी हाँ नाज़रीन किराम, तो ये मोहब्बत का वजीफा था, मैंने आप तक पहुँचाया। अब आपसे गुजारिश करता हूँ कि जायज़ मकसद के लिए कीजिएगा, नाजायज़ मकसद अगर आपका होगा तो फिर आपके ऊपर उल्टा असर हो सकता है, फिर उसके ज़िम्मेदार हम और आप नहीं होंगे, याद रखिए, उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। जायज़ मकसद होना चाहिए, नाजायज़ मकसद कीजिएगा तो उल्टा असर ज़रूर होगा। तो गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आखिर में यही एक बात कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहनों, 5 वक्त की नमाज आप ज़रूर अदा करें। नमाज़ें पन जगाना के आदी बन जाइए, क्योंकि दुनिया में भी आपके लिए ये नमाज़ें काम आती हैं, और आखिरत में कब्र में हर जगह ये नमाज आपके लिए काम आएगी। नहीं पढ़ेंगे तो आप गुनहगार होंगे। तो अल्लाह करीम हमें आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।